Hello everyone. Now we study high order thinking question based on alternating current. This question means 2018. Okay, let's see from question. For an RLC circuit driven with voltage of amplitude Vm, amplitude of voltage Vm and frequency omega naught is equal to 1 upon root LC. The current exhibits resonance, the quality factor Q. तो देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज Vm, बेटा आवाज नहीं, एंड ओमेगा नॉट 1 upon root LC. Omega naught 1 upon root LC from basic theory, resonant frequency, resonant angular frequency. Quality factor, you know that quality factor is equal to resonant frequency upon bandwidth. So quality factor from basic theory defined as the ratio of resonant frequency to the bandwidth. That's clear from basic theory. For resonant circuit, bandwidth R by L. So omega R is equal to, from question, omega naught R by L, omega naught L upon R. So your correct answer B. Your correct answer B option. अब देखिए बेटा, में आपको ड्राइव करके बताया जाता है. दैट्स क्लियर. आप चाहें तो वैसे बेसिक थ्योरी में बताया जाता है, आप चाहें तो मैं इसको बता सकता हूं आपको. देखिए, at resonant circuit, resonant frequency, here current will be maximum because impedance is minimum. Half power points P1 and P2, omega 1, omega 2. At half power points, current I maximum upon root 2. The points in resonant circuit at which power is half of maximum power of current is 1 upon root 2 times of maximum current. I is equal to I maximum upon root 2. I upon Z, 1 upon root 2. I maximum means V Z minimum. V कैंसिल, दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा. Z is equal to root 2 Z minimum, Z R square plus XL minus XC, XL omega L, XC minus 1 upon omega C. Z minimum is equal to R, squaring both side, R square plus L minus 1 upon omega C whole square, 2R square. R square को राइट में ले लीजिए बेटा, ओमेगा L minus 1 upon omega C whole square, R square. Taking square root both side, plus minus R. That's clear. At point P1, omega 1 L minus omega 1. देखिए, in right hand side two options, plus and minus. At P1 omega 1, omega 1 is less than omega 2. तो देखिए, omega 1 is less than omega 2, तो लेस क्वांटिटी का यहाँ तो प्रोडक्ट होगा, तो ये अमाउंट लेस हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, तो लेस क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो दिस अमाउंट फाइनली अमाउंट ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा 1L. तो ये नेगेटिव अमाउंट ग्रेटर हो गया उसके रेस्पेक्ट में, तो फाइनली आपको यहाँ क्या चूज करना पड़ेगा, माइनस R. दैट्स क्लियर. देखिए दोबारा सुने, ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2, तो ओमेगा 1L यहाँ छोटी क्वांटिटी लेस क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 अपॉन ओमेगा 1C में स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, तो स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली अमाउंट और भी लेस हो जाएगा, और यहाँ स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. तो लार्ज अमाउंट subtracting from a small amount we get negative result, so taking negative sign from equation first. Got it?
एट पॉइंट P2। अब P2 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ओमेगा 2 वहां पर आपने नेगेटिव साइन लिया तो यहाँ क्या आएगा प्लस। इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों ऐड करें तो ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2, राइट में R माइनस R कैंसिल, ओमेगा 1 कॉमन लीजिए बेटा, सॉरी L कॉमन लीजिए, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस -1 अपॉन C कॉमन 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस अपॉन ओमेगा 2। तो देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L 1 अपॉन C ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 फाइनली कॉमन लीजिए बेटा, L माइनस 1 अपॉन 1 ओमेगा इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, sum of frequencies, angular frequencies, you know that frequency always positive, never negative. So two positive quantities का sum always positive होगा, means omega 1 plus omega 2 never equal to 0। टू पॉजिटिव क्वांटिटीज का एडिशन सम कभी भी जीरो नहीं होगा, और फाइनली रिजल्ट जीरो है, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो कौन सा फैक्टर जीरो होगा, L माइनस सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू LC, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, माइनस ओमेगा 1L प्लस हो जाएगा, राइट में R माइनस R सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस R तो 2R, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 अपॉन C कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 फाइनली कॉमन ले लें, L प्लस 1 अपॉन C 1 ओमेगा। तो देखिए बेटा फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 LC L प्लस 1 अपॉन C हो गया बेटा 2R, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से कैंसिल 2L 2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 R बाई L। ये आपका बैंड विड्थ आ गया ना बेटा, बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ की ये वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, लेकिन ये आपके माइंड में कब सेट होगा, जब इसका बेसिक आपको कंप्लीटली मालूम है। यही तो हमने यूज किया था वहां। देखिए अब क्वेश्चन में आ जाइए, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंड विड्थ। बैंड विड्थ ओमेगा 2 माइनस 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू R बाई L, जो मैंने अभी आपको ड्राइव करके बताया। ये वैल्यू पुट करेंगे तो योर करेक्ट आंसर B। दैट्स क्लियर, ओके, थैंक यू।